In today's video, we will talk about a play by William Shakespeare, and that is Romeo and Juliet. So first of all, we will see the characters over here, and then one by one we will discuss. Okay. So now here we see as Romeo, another Juliet, Balthazar, and we have Tybalt, Friar Lawrence, Mercutio and Benvolio, and then as the nurse. Okay, so now one by one we will see again. Okay, so what happened over here is that we see over here as Romeo is the main character, and Romeo had two friends, Mercutio and Benvolio. Actually, Mercutio is the best friend of Romeo, and Benvolio is also the friend, but he is also the cousin of Romeo. So that means Romeo is the main character protagonist, and he had two friends, Mercutio and Benvolio. Mercutio is actually the best friend of him, but this Benvolio is the cousin and friend of him. Okay, so now this Juliet is the female protagonist over here, and she had this nurse is actually a motherly figure of Juliet. In Juliet's life, she loves Juliet a lot, and she is just like a nanny of this Juliet. Okay, there's Balthazar. Balthazar is actually the servant of Romeo. Okay, and he loves like he is very devotee of Romeo and all that. He respects Romeo. Now we have Tybalt. Tybalt is actually the cousin of this Juliet. Okay, and this Tybalt, he hates Romeo a lot. And he is actually, this Tybalt is actually an enemy to Romeo. Friar Lawrence. This Friar Lawrence is actually a fatherly figure to our Romeo, the main character. Okay, so now I hope that we have come across to a position wherein we got an overview about all the characters and what these characters mean in the play. Okay, so now the setting is in Verona, Italy, and this Romeo is from Montag family, and Juliet is from Capulet family. Romeo Montag and Juliet Capulet. Okay, Montag, Montague, Montag, and Juliet is Juliet Capulet. Okay, see the spelling over here. It is Capulet, Capulet. Okay, Capulet, Capulet. So it is actually Romeo is from Montag family and Juliet is from Capulet family. Romeo, Montag and Juliet Capulet, these two guys, that is Montag family and Capulet family, these two families, they were like in long years के fight, that is Montag की family और जो Montag की जो फैमिली है और जो कैपुलेट की फैमिली है, ये बहुत सालों से, कई सालों से ये एक दूसरे के एनिमी है, एंड ये एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं पब्लिक, मतलब उनको ऐसा कंडीशन है कि एक दूसरे को वो लोग मार ही डालेंगे पब्लिकली. ओके, now what happened, these are the children of Montag and Capulet family. Romeo is from Montag family and Juliet is from Capulet family. But what happened, the beginning से मैं बताती हूँ कि Romeo was actually, he is a main character, so he is in love with a girl, Rosalind. Okay, and what happened is one night Romeo and his this friend of Romeo, that is this Benvolio, Romeo and Benvolio was accidentally invited to a party held at Juliet's house, actually Juliet's palace में जो पार्टी थी, एक नाइट को एक पार्टी थी, तो जहाँ पर रोमियो एंड बेनवोलियो को इनवाइट कर लिया गया था. ओके, तो फिर वो लोग जाते हैं, एंड देन व्हेन ही सीज जूलियट फॉर द फर्स्ट टाइम, ही एंड दे बोथ शेयर like they dance with each other, and then it was love at the first sight. Okay, then Romeo follows Juliet, follows Juliet, and then वहाँ पर जूलियट का एक गार्डन होता है बड़ा सा, वहाँ से जाते गुजरते गुजरते उसे फॉलो करते करते गार्डन से होकर उसके फाइनली उसका रूम, मतलब गार्डन होता है ना, तो वहाँ पर एक उसका जो पैलेस होता है, तो उसका बहुत ऊंचा में उसका एक रूम होता है. ठीक है, जहाँ रूम नहीं होता है, काइंड ऑफ बालकनी होती है, बहुत बड़ी बालकनी होती है, जहाँ पर जूलियट बाहर हमेशा आती रहती है, देखती रहती है सीन नज़ारा ऐसे करके कुछ. ओके, तो यही है रोमियो. फिर ही काइंड ऑफ, दैट इज एक्चुअली व्हेन द बालकनी सीन हैपेंस, वो द फेमस बालकनी सीन ऑफ दिस शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट. ओके,
if you will google it, you will let to know, you will get to know. Okay, so what happened in this scene, in this balcony scene, is that Romeo and Juliet, these two guys, the lovers, Romeo and Juliet, they finally like confessed their love for each other, and then they decided to marry each other in secret. Okay, and the marriage, their secret marriage, was attended by Friel Lawrence. In the beginning, I already told you that Friel Lawrence was a priest in the church, and he was a fatherly figure to Romeo. Okay, so now he मतलब जो पंडित होता है ना, जो शादी में एक जो शादी करवाते हैं, वैसे ही फ्रियल लॉरेंस एक तरीके का वो काम करते हैं, यहाँ पर रोमियो एंड जूलियट की शादी करवाते हैं चर्च में. ओके, एंड नाउ दिस सीक्रेट मैरिज वाज फ्रॉम जूलियट साइड, वाज लाइक this nurse, she was the witness of this marriage from Juliet side. Juliet के साइड से ये नर्स है, विटनेस है, इसकी शादी की विटनेस है. ओके, रोमियो के साइड से बाल्थाजर, रोमियो का सर्वेंट है, वो गवाही देगा, यानी कि वो विटनेस है कि हाँ रोमियो एंड जूलियट की शादी हो चुकी है. ओके, now what happened is, after the marriage, Romeo उस मिलने जाता है अपने फ्रेंड्स मर्क्यूशियो एंड बेनवोलियोस. ओके, what happened is they had a meeting. रोमियो मर्क्यूशियो एंड बेनवोलियो वो लोग बात कर रहे थे ना, अचानक से टिबाल्ट आ जाता है. आई टोल्ड यू ना इन द बिगिनिंग दैट टिबाल्ट रोमियो का एक एनिमी है, वो रोमियो को पसंद नहीं करता है. फाइनली टिबाल्ट कम्स एंड वर्बली स्टार्टेड अक्यूजिंग रोमियो, वर्बली अक्यूज़ करने लगता है, अच्छे से बात नहीं, रूडली मतलब रूडली बात करने लगता है, मतलब अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करके उससे बात करने लगता है. ओके, ख़राब तरीके से बात करने लगता है, इसकी वजह से मर्क्यूशियो, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड है, मतलब इसके वजह से क्या हो जाता है, लड़ाई में मर्क्यूशियो एंड टिबाल्ट की लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, बहुत बैडली फाइट हो जाती है, जहाँ पर टिबाल्ट गुस्से में आकर मर्क्यूशियो को, मतलब लड़ाई में मर्क्यूशियो को मार देता है. ये टिबाल्ट मर्क्यूशियो को मार देता है, यानी कि रोमियो के बेस्ट फ्रेंड को मार देता है. ओके, उसके बाद क्या हो जाता है, रोमियो को जब ये पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की हत्या हो गई है, वो देख लेता है, तो उसे और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है. अब क्या करता है रोमियो, फाइनली गुस्से में आकर टिबाल्ट को वो मार देता है. तलवार जैसे होता है ना, पहले के ज़माने में तो तलवार मतलब बंदूक ऐसे करके वो मारा करते थे. तो क्या हो जाता है, रोमियो एंड टिबाल्ट की फिर से लड़ाई हो जाती है, रोमियो टिबाल्ट को मार देता है. ओके, now what happens, okay, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मॉन्टैग एंड कैपुलेट फैमिली, they were long enemies. Okay, and they used to fight with each other, these families, Capulet family and Montag family, they used to fight with each other. Okay, so now what happened is, the king of this Italy, Verona, Italy, I told you that the setting was in Verona, Italy, so that means the king of this place, that is Italy, or this Verona, this city, he was very much upset or very much irritated because of the fight between these two families, and finally he passed a law, or a kind of एक लॉ, एक घोषित किया, एक कानून घोषित किया कि इफ़ एनी मेंबर ऑफ ईच ऑफ द टू फैमिलीज, दैट इज इफ एनी मेंबर ईदर फ्रॉम द मॉन्टैग फैमिली और फ्रॉम द कैपुलेट फैमिली, दे आर फाउंड टू बी फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, then that person will be punished to death. Okay, now what happened, the news that Romeo has killed Tybalt, it spread. उसके बाद क्या हो जाएगा, रोमियो's life is in danger, and then he went to Friel Lawrence. Romeo went to Friel Lawrence. Friel Lawrence told him that, see, you have killed Tybalt, and this as soon as the news of your killing Tybalt will reach to the king, what will happen to you? You know, Romeo, that you have, and Friel Lawrence warned Romeo that if you are staying here, like if you further stay in this place, that is Verona, और Verona जो है इस place में, अगर और तुम थोड़ी और देर भी रुकते हो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हें डेथ पनिशमेंट पक्का मिलेगी. इसलिए फ्रियल लॉरेंस रोमियो को छुपने में मदद करते हैं. नाउ रोमियो एस्केप्स टू मांटुआ. द स्पेलिंग इज MANTUA, Mantua. Okay, so now Romeo escapes to Mantua. It's a place wherein he escapes with the help of क्योंकि वो फ्रियल लॉरेंस उसकी हेल्प करते हैं एस्केप करने में, तो वो छुपने में, ताकि वो ये जिम्मेदारी लेते कि ओके ठीक है, तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ से चल जाओ, मांटुआ चल जाओ, तब तक क्या हो जाएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि जब तक कैपुलेट और जब तक तुम नहीं रहोगे, यानी कि तुम थोड़ा माहौल शांत हो जाए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि माहौल को मैं शांत करूँगा. ओके,
So this Freya Lawrence takes the responsibility of settling the anger between, or the fight between, Montag and Capulet family until Romeo will return. And he makes a plan that yes, Romeo is now escaped. I will send Romeo to a place, okay, Mantua, that he is safe now, and then until he returns, like I will try to settle the matter, settle this fiery battle between these two families, so that as soon as the anger between these two families will settle down, and then when Romeo will return back to Verona, and then the lovers, that is Romeo and Juliet, they can be unite. Why? Because Romeo and Juliet had already married in secret. That means these guys were husband and wife. Okay. Now, what happened is, before going to Mantua, Romeo spent a night with Juliet, his wife. The first night they spent, they consummated their marriage. Okay. So now what happened is, after that he leaves. Okay. And now Juliet was forced by her mother, that she had to marry a guy named Paris, Paris, Paris. Okay. And her father also was now forcing her that okay, Juliet, you have to marry a guy. Okay. Guy का, उस लड़के का नाम है Paris. Okay. So now, and Juliet was surprised to see that the nurse, who was actually Juliet's motherly figure, who was very caring by nature, and she loved Juliet a lot. She witnessed Juliet's this secret marriage from with her own eyes. That is, उसने खुद देखा था जूलियट की शादी, ठीक है, खुद अपने आंखों से देखा था. वो गवाह थी कि जूलियट ने शादी जूलियट की शादी हो चुकी है ऑलरेडी, यानी कि वो किसी की वाइफ है, लीगल वाइफ है. बट देन टू व्हेन हर Juliet's parents, that is Juliet's mother, and Juliet's father, that is Juliet's parents, they were forcing Juliet कि ठीक है तुम शादी कर लो. फिर भी उसकी नर्स ने कुछ नहीं बोला, यानी कि उसकी नर्स को जब पता है कि जूलियट की शादी हो गई है, बट फिर भी वो कैसे किस तरीके से जूलियट को फोर्स कर सकती है. तो जूलियट फिर बोलती है यू टू. जूलियट को बहुत सरप्राइज होता है कि आप भी ऐसे कर सकते हो, आपको तो खुद पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, तो आप कैसे ऐसे कर सकते हो. तो जूलियट का हालत बहुत ख़राब था अभी, क्योंकि ना रोमियो है उसकी मदद करने के लिए, ना कोई और है. और उसके बाद कि रोमियो ने जब मार दिया है टिबाल को, तो उसके बाद तो कंडीशन बहुत बुरा हो चुका था, मतलब दोनों फैमिलीज़ के बीच में. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, नाउ जूलियट हैड नो वेयर टू गो. नाउ शी फाइनली अप्रोचेस फ्रियर लॉरेंस. ओके, द फादर फिगर टू रोमियो. उनके पास जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई मददगार नहीं होता. फाइनली गोज टू अप्रोचेज हिम, लाइक फ्रिया लॉरेंस के पास जाती है, एंड बोलती है कि देखिए मेरे पेरेंट्स इस तरीके से मुझे फोर्सफुली मैरिज करवाना चाहते हैं किसी और से, जबकि मेरी शादी रोमियो से हो चुकी है. वो रोमियो से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, एंड शी वॉज ऑलरेडी अ लीगल वाइफ ऑफ हिम, रोमियो. ओके. तो फिर फ्रिया लॉरेंस से वो बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. तो फ्रिया लॉरेंस उसे जूलियट की मदद करने के लिए एक तरीके का लिक्विड देते हैं, एक पोशन देते हैं, काइंड ऑफ पोशन. पोशन इज़ काइंड ऑफ अ लिक्विड एक ड्रिंक होता है. उस ड्रिंक को उन्होंने ये बोला कि इफ़ यू इनटेक दिस पोशन और अ ड्रिंक, जब तुम इसे ड्रिंक करोगी तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए तुम्हारा जो बॉडी हो जाएगा वो ब्लू कलर का, जैसे जब इंसान मर जाता है तो वो ब्लू कलर का बॉडी हो जाता है ना, यानी कि मुर्दा जैसे लगेगा. सबको को लगेगा कि जूलियट उठ नहीं रही है, उसकी मतलब सांसें बंद है, मतलब प्रिटेंड काइंड ऑफ लगेगा जूलियट को, मतलब बहुत लंबे समय तक, कि ताकि सबको ये लगे कि जूलियट मर चुकी है. और इतने लंबे समय तक क्या हो जाएगा कि तब तक रोमियो वापस आ जाएगा. फ्रिया लॉरेंस की यही मतलब एक तरीके का प्लान था कि ठीक है, जूलियट को मैं ये सबके सामने ये प्रिटेंड करवाता हूँ कि जूलियट मर चुकी है, ताकि इसी बीच मैं एक लेटर लिख लूँ, एंड वो लेटर रोमियो को पहुँचा दूँ कि रोमियो इस ऐसे ऐसे प्लान हमने बनाया है कि तुम वापस आ जाओ, तब तक जूलियट एक मरने का नाटक करेगी. ठीक है. रोमियो उसने बताया कि ठीक है, मैं तुम ड्रिंक कर लो, तुम निश्चिंत रहो, मैं लेटर रोमियो को दे दूंगा. ठीक है. लेकिन द प्रॉब्लम ये हो जाता है, ये जो बाल्थाज़र होता है, बाल्थाज़र यानी कि बाल्थाज़र जो रोमियो का सर्वेंट होता है, वो उसे भी ये न्यूज़ पता चल जाती है कि जूलियट की डेथ हो गई है. यानी कि सबको ये जो चीज़ था, ये जो नाटक था कि जूलियट का मरने का नाटक है, ये फ्रिया लॉरेंस को पता है, जूलियट को पता है, बट ये बाल्थाज़र को भी पता नहीं था कि ये लोग फेक कर रहे हैं चीज़ें. ठीक है. तो बाल्थाज़र क्या हो जाता है, दौड़े दौड़े चल जाता है रोमियो के पास, एंड बोल देता है सी रोमियो, जूलियट तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है, जूलियट हैज़ डाइड.
तो रोमियो तो जूलियट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो अब मतलब पता ही होगा कि कैसे मतलब बीत रहा होगा उस पर कि उसकी वाइफ मर चुकी है और वो वहाँ पर था भी नहीं। तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, जब उसे ये बाल्थाज़र के द्वारा ये न्यूज़ पता चलती है वो पागल हो जाता है। एंड देन फाइनली वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर टूम्ब में जाता है, टू जूलियट्स टूम्ब। टूम्ब मतलब वैसी जगह, कब्र होता है जहाँ पर जूलियट को लिटाया जाता है, सुलाया जाता है, मरने के पहले होता है ना कब्र, मतलब कब्र के पहले उसका जो बॉडी है वहाँ पर रेस्टिंग प्लेस पे रखा जाता है, तो वहाँ पर जाता है। फाइनली अंदर घुस जाता है एंड देखता है अपनी वाइफ को वैसे करके सोए हुए। उसे तो नहीं पता कि वो नाटक कर रही है मरने का, मतलब वो ड्रिंक के वजह से उसका बॉडी में वो रिएक्शन हुआ, इसलिए वो मतलब कोमा में काइंड ऑफ चल गई है। वैसे वो मतलब स्लीप कर रही है, मतलब एक तरीके का बोले ना सोना, सो चुकी है उस तरीके से कुछ टाइम के लिए, उसे नहीं पता है। ठीक है, एनेस्थीसिया काइंड ऑफ कैसे होता है, एनेस्थीसिया जब देते तब इंसान कुछ घंटों के लिए सो जाता है ना, तो फिर कैसे इंसान को उठाने से भी नहीं उठता है, तो वैसे ही मतलब वो बेहोश है, उसे नहीं पता। तो अब क्या होता है ना, तो रोमियो क्या होता है उसे देखकर बहुत ज़्यादा वो मतलब पहाड़ टूट पड़ता है उस पर, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाता है। एंड फाइनली रोमियो क्या करता है, उसके मतलब वो एक लॉकेट पहना हुआ होता है जहाँ पे एक पॉइजन होता है, मतलब उस लॉकेट में एक तरीके का मतलब उसमें पॉइजन रखा हुआ होता है, उसको वो पी लेता है। ओके, रोमियो उसकी हालत को देखकर वो पी लेता है उस पॉइजन को एंड फाइनली मर जाता है। अब कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद, कुछ ही मिनट बाद जूलियट जब उठती, जूलियट की होश आती है, वो देखती है रोमियो उसके बगल में पड़ा हुआ है, उसको मतलब हग करके पड़ा हुआ है। एंड देन शी ऑल्सो सीज कि जब वो ही नहीं रहा तब वो रह के क्या करेगी। फाइनली वो ही पॉइजन खा लेती है जो रोमियो ने खाया था, अपने आप को स्टैब कर लेती है। ये प्ले है तो डिफरेंट टाइप ऑफ बोला गया, किसी में बताया गया है कि रोमियो स्टैब्स हिमसेल्फ एंड देन जूलियट स्टैब हिमसेल्फ, किसी में बताया गया है कि रोमियो ड्रिंक्स द पॉइजन एंड देन जूलियट ड्रैंक द सेम पॉइजन फ्रॉम दैट रोमियो ड्रैंक। तो इसी तरीके का मतलब बात ये है कि जूलियट को जब पता जूलियट जब खुद देखती है रोमियो मर चुका है, मतलब रोमियो ने अपनी जान दे दी, तो जूलियट भी वही पॉइजन खाकर अपनी जान दे देती है। एंड फाइनली द लवर्स डाइड। ओके, ट्रैजिक डेथ होता है, बट इनके डेथ के बाद ये दोनों फैमिलीज जो है, उनकी जो लड़ाई थी वो बंद हो जाती है एंड द फैमिलीज फाइनली यूनाइट एंड दे डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर। द लवर्स डेथ, the tragic death finally brought the reunion and peace within the families. Okay, thank you so much. If you will visit my channel, you will get to know that I am uploading UGC all the topics of UGC NET preparation. Paper 1 is for this general paper, teaching and research aptitude. All the units I will be uploading over there in a separate playlist, and paper 2 is specifically for English literature because I have completed my masters in English only, like paper was in English only, so obviously जो मेरा पेपर UGC NET का पेपर 2 होगा वो इंग्लिश का होगा। तो इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी टॉपिक्स है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं जितना भी प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो वैसे मैं आपको भी शेयर करती रहूँ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मतलब एक तरीके का हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मेरी भी एक रिवीजन हो जाएगी और आप जैसे जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं आप लोगों को मैं अगर बताती हूँ तो अच्छा ही हो जाएगा, मेरा भी नॉलेज गेन हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा ना, मतलब कोई भी चीज़ शेयर करने से बढ़ती है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अगर आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।